continuing off with our directed writing topic. Up till yesterday, we understood the difference between form, purpose, audience, register. Do we all remember that? I would just need thumbs up. If you do not, thumbs down is fine too. But I would just want all of us to be on the same page. Okie dokie, all right. That's good to go. Aisha, Sarosh, what about Hamna? Hamna wasn't in class yesterday. Hamna, you'll be able to catch up. I have the recording, bete, okay? Vanya, Hasnain, और कौन है क्लास में? Okay, Abdullah will listen in. I think that's it, right? Okay, and Khadija. Khadija, beta, you remember as well? You were in class yesterday? Acha, yesterday we tried to understand the different forms of directed writing that we generally come across when it comes to O-levels English language, double 1, 2, 3. So, who can tell me what forms of directed writing are? You can just simply write down in the chat box. Who can tell me the forms of directed writing? How many forms do we tackle as part of O-levels double 1, 2, 3? Can either one of you tell me the total number of forms and their names as well? Take a wild guess, bachon. Okay, very good, Abdullah. Excellent. Good, good. Very good job. Anyone else? Guys, come on. He wasn't even in class yesterday. Report. Well done, Aisha. Good job. Email. Well done. Excellent work, Aisha. One is left. Speech. Bingo. Well done, Hasnain. So total, we tackle 5 genres of directed writing when it comes to all genres or categories or types or forms of directed writing when it comes to double 1, 2, 3. बार बार मैं remind इसलिए करवाती हूँ because for IGCSE things are a little different. So please do not take a look at the IGCSE syllabus or the IGCSE past papers because they also tackle interview writing and journal writing as well. However, there's one thing to understand. When we tackle email writing and when we tackle letter writing, we have formal and informal both, in both cases. So email maybe we have formal and informal, and letter maybe it's the same as well. Now, in this case, we need to understand the register of writing. Do we understand what register of writing is? Do we remember that? Any one of you can explain in your own words what register of writing meant? No? Yes, very good. Formal, semi-formal, informal. All right. Now we will be discussing this even more so in the future, inshallah. And I have a worksheet ready for you guys on the difference between formal and informal. But मैं एक चीज बता दूं before we move on. देखो, if I ask you guys right now, you would tell me कि miss informal वो होता है when we speak to someone that we are familiar with, right? Someone who we are on friendly terms with. Maybe a cousin, maybe a friend, right? Someone who is a contemporary, a peer, our own age. But formal वो होता है when we are speaking to someone who is maybe professionally superior than us, right? Or maybe an elder as well. तो maybe miss हम casual language use करेंगे informal में, and the very opposite of that we will do in formal. So that is mainly what you guys remember, or maybe what you guys understand. What you do not understand is that when it comes to beta formal versus informal, we have complete set of rules of language that we need to follow. All right? कि formal में कैसी language use होती है और informal में कैसी होती है. For example, let's suppose if I'm writing an informal letter or an informal email, जिसमें I have to use the informal register of writing. So some of the main language conventions that I will follow are going to be the use of contractions. Then I will use phrasal verbs. And lastly, I would use idioms. So do we know what this means? What are contractions, bachcho? Anyone can tell me? What are contractions?
Come on, take a wild guess. ठीक है, very good Aisha, well done. So for the convenience of you all, once again beta, contraction comes from the word contract. Remember जब हमने apostrophes या apostrophes के बारे में पढ़ा था? Yes, very good Sarosh, well done. So for example, if we have the word cannot, it will become can't. अब मैं बार बार ये चीजें क्यों बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बेटा यही चीजें हैं that will actually get you marks in the exam and what probably you might not be studying at school. स्कूल में इफ दे आर टेलिंग यू मे बी कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल यूज करना है, तो दे माइट नॉट एक्चुअली टेल यू कि उसमें एक्चुअली कन्वेंशंस कौन से फॉलो होंगे, रूल्स कौन से फॉलो होंगे. तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कैजुअल? कैजुअल क्या होता है भाई, क्या मतलब है इस बात का? मैं अभी जैसे बात कर रही हूं वो भी कैजुअल है, तो मैं इस तरह हो सकता है अपनी मदर से भी बात कर लूं, बट क्या एकेडमिकली हम ये यूज कर सकते हैं किसी बड़े के साथ? नो, वी कैन नॉट. तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल in the academic sense? All right बच्चों, so in this case contractions हमने लाजमी यूज करने हैं in informal writing, नंबर ही उसके मिलेंगे. ठीक है, what are phrasal verbs? Who will tell me what phrasal verbs are? come on guys, ये भी हमने इसके ऊपर बात की हुई है पहले. You got this? Phrasal verbs. अच्छा, phrasal verbs are when you join together a preposition plus a verb. ठीक है? So for example, if I say इसको मैं जरा उल्टा कर देती हूँ ताकि it will make more sense to you guys actually. So it will do it like this. Verb plus preposition. अच्छा, prepositions तो हमें याद है ना? I remember discussing that. नो, आई शैल टेल यू बेटा. देखो, पहले तो ये समझो preposition क्या होता है. Preposition is a word that defines the position of a noun or a pronoun. If I say the cat is under the table, what do you think is the preposition in this sentence? The cat is under the table. What do you guys think is the preposition? Under. Well done Zuna, excellent. Yes. If I say the airplane flew above the house, the airplane flew above the house. Excellent, well done. We understand now? Good job. तो अगर मैं लिखूं get up, that is a phrasal verb. Get is a verb, कोई action हो रहा है, और up preposition है. It is defining the position of a noun or a pronoun. That's right, well done Abdullah. So in, out, under, below, behind, above, ये prepositions होते हैं. Now let me make it more simple for you guys. जैसे get up है, इसी तरह you can write down sit down, ये it's a phrasal verb, or even shut up, that's also a phrasal verb by the way, and that can be used as part of your informal writing. Do we understand? Easy peasy so far बच्चों, यहां तक समझ आए? I want a thumbs up from everyone please. Okay, चलो, नहीं समझ आया तो बेशक thumbs down दे दो. I'll explain it again. Okay, all right. And lastly we have idioms. अब idioms किसी ने उस दिन भी मुझसे पूछा था. I think Hasnain was a little confused. Hasnain मेरा बेटा, are you there? Hasnain बहुत परेशान है कल से. Hasnain, are you okay? Okay, अच्छा. For the convenience of everyone, I will explain this again. Idioms, they are a bunch of silly words. Silly bhi nahi, bas words. They're joined together, but they make zero literal sense. If I say a piece of cake does not mean a cake ka tukda. All right, it means something easy. Idioms are muhavare. अब anyone who is from Karachi particularly, जो उर्दू speakers हैं, पंजाबी स्पीकर्स को अपने मुहावरे आते होंगे, बट क्योंकि आई एम नॉट अ पंजाबी स्पीकर तो मुझे जनरली उर्दू के मुहावरे ज्यादा आते. तो आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर सेइंग दिस व्हेन आई वाज यंग. आसमान से गिरा खजूर में अटका. डू यू गाइज नो व्हाट दिस मीन्स? यू ऑल टेक उर्दू, सो प्रोबेबली यू गाइज नो व्हाट दिस मीन्स. Yes, very good, excellent मुकद्दस. आसमान से गिरा खजूर में अटका.
बगल में बच्चा, शहर में ढंडोरा. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस वन? उर्दू का. सो ये कुछ उर्दू के हैं जो मुझे याद है. नहीं मतलब चीज आपके पास है और ब्लेम. यस एग्जैक्टली, वेरी गुड मुकद्दस, वेल डन. सो इन इंग्लिश वी हैव फ्रेजेस और idioms like piece of cake, it's raining cats and dogs, letting the cat out of the bag, burning the midnight oil, break a leg. मुझे पर्सनली ब्रेक अ लेग यूज करना बहुत पसंद है. तो एक बार फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि ब्रेक अ लेग का क्या मतलब है, कि मेरी टांग तोड़ दे या टूट जाए. तो आई टोल्ड देम नो, ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक. अब देखो इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये किसी ने बस उठा के बना दिया, उनका मीनिंग भी एक उसके साथ वो कर दिया, व्हाट डू यू कॉल इट, एसोसिएट कर दिया, राइट. सो ऑल यू गाइस नीड टू डू इज यू हैव टू लर्न देम. ओके, डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कौन सा बेटा, what idiom will that be? नहीं, break a leg means good luck. It literally means good luck. Yes, it means best of luck, good luck. Raining cats and dogs, as Muqaddas just told us, raining heavily. So जी, do we follow बच्चों? So far are we good? And I guarantee you this कि ये use कर आओगे, A star is inshallah yours. The very opposite of this is formal. अब अगर फॉर्मल लैंग्वेज में, लेट्स सपोज यू राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और यू राइटिंग अ रिपोर्ट मे बी टू अ हेड टीचर परहैप्स, लेट्स सपोज, और उसमें आप ये चीजें यूज करके आते हो, यू आर यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्शन or a phrasal verb or an idiom, you will lose marks beta. So instead of writing can't, you will write down cannot. Okay, we can't use these. No, you cannot, Muqaddas, you cannot. Yes, in semi formal to an extent you can, बट फॉर्मल में तो हरगिज नहीं यूज करना. फॉर्मल में वी मेनली यूज लिंकिंग वर्ड्स. रिमेंबर लिंकिंग वर्ड्स. सेमी फॉर्मल इज इन बिटवीन मेरा बेटा. जनरली सेमी फॉर्मल इज यूज फॉर आर्टिकल्स. लेट्स सपोज यू राइटिंग एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन, उसमें आप कंप्लीटली ना फॉर्मल हो सकते हो ना इनफॉर्मल. बिकॉज इफ यू राइटिंग फॉर द स्कूल मैगजीन, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज गोइंग टू बी योर ऑडियंस? If you're writing for the school magazine, who is your audience? Reader. But reader कौन होता है? Reader तो कोई ना कोई है. Students. Well done. बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि miss, it's going to be teachers, it's going to be the principal. No, the audience is students. As a student, if you're writing for the school magazine, your audience is going to be students, right? That's important to understand. तो अगर आप अपने ही peers के लिए या contemporaries के लिए you are writing an article, not everyone is going to be your friend, right? ऐसा ही होता है ना. स्कूल भी हम जाते हैं तो क्लास में भी सारे बच्चे दोस्त नहीं होते ना एक दूसरे के. कोई एक ग्रुप होता है, कोई एक और ग्रुप होता है, so on and so forth. जो मजाक आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, can you crack the same kind of jokes with your other classmates as well? Right? You cannot. तो इसीलिए we are supposed to be semi formal to formal when it comes to article writing. Okay बच्चों? So that is why semi formal. अच्छा, semi formal में होता क्या? Semi formal में you need to use a few of contractions as well. You can use a few phrasal verbs and idioms as well, but at the same time you use linking words as well, so on and so forth. All right, again I'm reminding you guys, are we particularly learning? No, we are not, Muqaddas. We were just discussing the difference between formal versus informal rules of writing and how हमारे mind में सिर्फ ये होता है कि informal means casual and formal means not casual. But इसका क्या मतलब है? What rules do we use in academic writing? तो मैं overview दे रही थी उस चीज का, but इसके ऊपर पूरा एक handout है that I will discuss with you guys. Okay, are we good to go बच्चों? So far so good. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को याद करा दूं, एंड आई ट्रूली होप यू गाइज विल रिमेंबर दिस. बच्चों देखो, सोशल मीडिया अपनी जगह है, एकेडमिक राइटिंग अपनी जगह है. इनफॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में भी यू कैन नॉट यूज सोशल मीडिया स्लैंग. आई वांट टू गो देयर, आई गॉट टू डू दिस, लॉल,
TBH. Please. No Gen Z slang. Allah ka wasta. You can't see me, putting my hands together, but I'm literally putting my hands together. Wanna, gonna, do know, lol, TBH, WTH, WTF, बिल्कुल भी नहीं. Okay? समझ आ रहा है? क्योंकि ये मैंने देखे हैं, ये मैंने लिटरली राइटिंग्स में देखे हैं, एंड आई हैव फ्लैग्ड मार्क्स फॉर दीज बिकॉज केम्ब्रिज विल फ्लैग मार्क्स फॉर दीज. Have we understood? Good to go? If we are, I'm going to move on now, okay? So next up we have comparing the 5 forms, which are literally what your O-levels English language 1123 directed writing is all about, okay? So in this case बच्चों अब हमने डिफरेंस समझना है. डिफरेंस क्यों समझना है? बिकॉज सबके फॉर्मेट्स आर डिफरेंट. जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे उनकी मैं कन्वीनियंस के लिए फिर से बता दूं एक बार. केम्ब्रिज will not give you marks for format. तो वो जो आपका बड़ा फैंसी फॉर्मेट होता है ना, एड्रेस और डेट और फलाना ढिमाका एंड ऑल दैट, सब्जेक्ट ईमेल में, उसके कोई नंबर नहीं है केम्ब्रिज में. लिख दो, गुड. नहीं लिखोगे, नंबर नहीं कटेंगे. डू वी अंडरस्टैंड? तो उसके ऊपर टाइम ना वेस्ट कीजिए बेटा, ओके? कोई उसका फायदा नहीं है. अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव एन आर्टिकल नाउ. This table will clearly tell you the likely audience, the main purpose, the structural conventions need to be followed, register and effective ending. Ma'am, I was confused since day one whether there's a format. No, मेरा बेटा, Cambridge के जो actual documents हैं अब्दुल्ला, they tell you right away कि dear से start करो. अगर आप cousin को लिख रहे हो तो उसका नाम लिख दो बेशक, dear Ali, dear Fatima, dear Amna, whatever. अगर आप headmistress या headmaster या principal को लिख रहे हो तो dear sir, dear madam. All right? That's fine. Dear principal, जिस तरह से भी करना है. And that is it. कोई एड्रेसेस और डेट्स और फलाना ढिमाका लिखने की जरूरत नहीं है. All right. अच्छा, अब दिस टेबल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो आई रियली वॉन्ट योर अटेंशन. ओके मैम, एवरी राइटिंग शुड बी स्टार्टेड सिंपली विद डियर. नहीं मेरा बेटा, स्पीच इज डिफरेंट, आर्टिकल इज डिफरेंट. आर्टिकल में आप हेडिंग बनाते हो, उसमें डियर नहीं आता. स्पीच में आप गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो. रिपोर्ट में आप हेडिंग भी बनाते हो, सब हेडिंग्स भी बनाते हो. तो डियर सिर्फ ईमेल्स और लेटर्स के लिए यूज होता है. वो फॉर्मेट नहीं है बच्चों, वो फॉर्मेट नहीं है इन इटसेल्फ. दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स पार्ट ऑफ इट. ओके, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वो वाला फॉर्मेट है जो आप कह लो अनकन्वेंशनल है थोड़ा. व्हेन आई से फॉर्मेट, मैं मेनली लेटर्स और ईमेल्स वाले फॉर्मेट की बात कर रही हूं. मेनली वो जो आपका एड्रेसेस वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं. और या फिर ईमेल में मैंने देखा बहुत टीचर्स पूरा इलाबोरेट फॉर्मेट लिखवाते हैं, टू, फ्रॉम, सीसी, सब्जेक्ट. वो नहीं लिखना, ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर P2. दीज आर ऑल P2 आयशा. यस. अच्छा, अब आई होप ऑल आईज, ईयर्स, एवरीथिंग इज ऑन दिस पेज, फोकस्ड. जो नहीं समझ आए पूछ लेना, बट आई एम गोइंग टू गो थ्रू ईच ऑफ द फॉर्मेट्स इन डिटेल हियर. ओके, सबसे पहले वी हैव एन आर्टिकल. अच्छा, for the convenience of those students again जो कल नहीं थे क्लास में, we understood the difference between discursive, argumentative and persuasive writing as well. So you guys will get the video from yesterday's lecture, ठीक है. You have to go through it. क्योंकि जब आगे अब हम जब फॉर्मेट्स को समझना शुरू करेंगे बच्चों, तो वो समझना जरूरी है उसके लिए. क्योंकि जनरली स्पीकिंग हमारा लेट सपोज आर्टिकल, सॉरी ईमेल या लेटर जो होता है ना, खासतौर पे इनफॉर्मल में, वो डिस्कर्सिव होता है इन नेचर, या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, परसुएसिव नहीं होता. ओके, तो ये समझना जरूरी है कि उनका डिफरेंस क्या है, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड देम इन देयर एंटायरिटी. ऑल राइट. सो एट नंबर 1 वी हैव व्हाट डू यू कॉल इट, article writing, right? So at number 1 we have article, which means readers of a school magazine, a local paper or a website. आपको ज्यादातर स्कूल मैगजीन के लिए लिखने के लिए आता है, but it can be for a local paper or it could be for a website as well. Generally website नहीं होता, but it can be the local paper, local magazine. All right. ज्यादातर in schools we are taught article as a magazine article. You know what I'm saying? So just trying to make you guys relate with whatever you have learned in school so far as well, ताकि we're all on the same page. Okay. What is the main purpose? To inform, to create interest, and usually to advance a certain view. This reminds me once again, जब मैंने आप लोगों को कल या परसों डिफरेंस बताया था between directed writing and composition writing, तो मैं यहाँ बड़ा फिर से लिख रही हूँ कि directed writing
जो डिफरेंट होती है एज अपोज टू कॉम्पोजिशन, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, वो होती ही इसलिए क्योंकि इट एम्स टू, कौन क्लास में नहीं है, अच्छा ओके, सो इट एम्स टू इन्फॉर्म, परसुएड और एजुकेट, ठीक है। डायरेक्टेड राइटिंग का बेटा पर्पस ही ये होता है, ईच वन ऑफ दीज जॉनरास, इनकी जॉब ही यही है कि या तो वो किसी चीज पे आपको इन्फॉर्म करेंगे, या परसुएट करेंगे, या एजुकेट करेंगे। लेट सपोज मैं वही एग्जांपल देती हूँ, मैं आर्टिकल पढ़ती हूँ जंक फूड पे, ठीक है, जंक फूड ईटिंग पे, तो वो मेरे लिए एक्सपोजर है ना मेरा बेटा, मुझे उससे पता चल रहा है कि अच्छा अगर मैं जंक फूड खाऊंगी रोज, अगर मैं रोज बर्गर खाऊंगी तो मैं एक दिन बर्गर बन जाऊंगी लिटरली, and I will literally get diabetes or cholesterol or eventually I will burst, honestly speaking, क्योंकि that is bad for my health in a manner of speaking. अब अगर मेरे पास एक आर्टिकल नहीं है या एक्सपोजर नहीं है तो मुझे कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाने में वी हैव द इंटरनेट, राइट? हाउ डिड मेनी ऑफ अस फाइंड आउट अबाउट द इजराइल पैलेस्टाइन इशू? थ्रू द इंटरनेट, राइट? कुछ चीजें हमारे बड़ों ने बता दी, कुछ चीजें हमें, मेजॉरिटी चीजें इंस्टा ने बताई हैं, ऐसा ही है ना? वेरी गुड आयशा। तो एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर से हमारा माइंड बना। चलो ठीक है, हम तो मुसलमान हैं, वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस लिटरल जेनोसाइड, इट्स नॉट अ वॉर, बट सो मेनी नॉन मुस्लिम्स वर एबल टू अंडरस्टैंड द पैलेस्टाइन इशू बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. So many of them actually reverted to Islam because of that as well, because of exposure. So directed writings जो होती है ना बेटा, वो in some way or the other they are informing and educating you on certain things. Remember the speech about Martin Luther yesterday that we saw? उसमें भी यही था ना कि Martin Luther became that one person that advocate for American rights, for African American rights in America. Already because of Quran. Yes, very good हसनैन, हमें तो पता है ना, हम मुसलमान हैं, हमें पता है, हमें जरूरत नहीं है किसी को बताने की कि इजराइल क्या है, इट्स एन एपेटाइट स्टेट एंड इट्स नॉट सपोज टू बी ऑन द मैप, बट सो मेनी नॉन मुस्लिम्स डिड नॉट नो. जैसे यू गाइज विल बी सरप्राइज टू नो, अगर मैं आपको, दिस इज नॉट अ रिलीजियस स्टडीज क्लास, बट वन ऑफ माई मेन इंटरेस्ट इज टू रीड अपॉन डिफरेंट रिलीजन्स. अब Christianity being one religion that I have read in detail, studied in detail, and so is Hinduism. तो इफ आई टेल यू सो मेनी थिंग्स जो हमें इनके बारे में पता है, बट दे आर प्रोबेबली नॉट ट्रू और प्रोबेबली डिफरेंट देन हाउ वी नो अबाउट देम. सो इसी तरह नॉन मुस्लिम्स के लिए भी अंडरस्टैंडिंग द पैलेस्टाइन इशू इन टुडेज एरा बिकेम ईजी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एक्सपोजर, और तभी उन्होंने जाके कुरान भी पढ़ा ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग्स एट दिस पॉइंट, whether that's print media or electronic media. Do we understand, bachcho? Easy peasy so far? So this is what this is doing for you, right? This is what an article is doing for you. Then we have structural conventions. This is where obviously your organization comes in. A headline is very important. Like I told you, article में अगर आपने headline नहीं बनाई, you will end up losing marks. So please बच्चों, एक catchy सी headline बनाना is an art when it comes to article writing. और वो headline बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, because that kills the purpose of the headline, ठीक है? So it needs to be only maybe 4 to 5 words long, okay? An opening that establishes the issue. All those articles that I've ever checked, the good ones, they are those articles जिसमें पहले ही पैराग्राफ में headline before, yes, absolutely Abdullah, सबसे पहले you will make a headline, ठीक है? मतलब यहाँ पे पहले headline and then you will start writing, okay? So it goes without saying, I think, कि पहले ही paragraph should talk about the main issue you're going to discuss in your writing. अगर आपके पहले paragraph में आए बाएं शाएं होता रहा and you keep talking about silly things, that's going to kill the purpose of the writing and your examiner is going to lose interest. To make sure that your examiner is held on to an example of a good heading. Beta, an example of a good heading. Let's suppose मैं जंक फूड के ऊपर आर्टिकल लिख रही हूँ, ठीक है? तो let's suppose मैं इस तरह से हेडिंग बनाती हूँ इसकी.
Make sense? Good to go? Can you give the examples of attempts? Yes, you will be given all model answers, Hasnain. बिल्कुल easy हो जाओ मेरा बेटा. We'll be breaking everything down ताकि when you will be attempting your own answers, inshallah you will know exactly how you have to do a certain thing. अच्छा, heading समझ आइए? Do you know how we do this now? Are we good to go? चलो, let's continue. तो मैं ये बता रही थी कि जो मैंने आर्टिकल्स अभी तक पढ़े ना फ्रॉम दो स्टूडेंट्स, द वंस दैट आई पर्टिकुलरली टीच एट द स्कूल्स दैट आई टीच एट, उन बच्चों का जो डिफरेंस होता है ना, प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली, एक अच्छे आर्टिकल का ये होता है कि पहले ही पैराग्राफ में एज द टीचर आई एम टोल्ड व्हाट द आर्टिकल इज गोइंग टू बी अबाउट. And an article that is a weakly written one, it will continue to give me a very irrelevant, unnecessary, information that is not needed at all. और जब तक वो जाके बच्चा मुद्दे पर आता है literally, तब तक examiner as a teacher I have lost interest. To make sure that you are holding on to the interest of your examiner, make sure that the first paragraph aligns with the very topic of your writing. Okay? Then obviously developed paragraphs, ये बात तो at this point I should not be telling you guys कि हमने bullet points के ऊपर specific focus करना है for the convenience of everyone, whether you were in class yesterday or not. मैं फिर बता रही हूँ कि the bullet points are given to you guys in the question, but regardless your information needs to be developed from the two passages given. जो आपको पेपर में दो passages दिए गए होते हैं ना, इंसर्ट वाले, उसमें से ही आपने अपनी इंफॉर्मेशन डेवलप करनी है. एंड माइट आई ऑल्सो रिमाइंड यू गाइज कि वो मिल मिला के दोनों जो पैसेजेस होते हैं वो मिल मिला के 400 to 450 वर्ड्स के बनते हैं. नंबर वन. नंबर टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोथ ऑफ दोज पैसेजेस आर गोइंग टू बी इन कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर, डिसएग्रीमेंट में होते हैं. जैसे मैं वो बता रही थी कि जो स्पेसिमेन पेपर हमारा आया था ना मई जून 24 से पहले, जो कैम्ब्रिज ने सैंपल पेपर दिया था, तो उसमें उन्होंने जो टॉपिक्स दिए थे ना वो ट्रैवलिंग पे थे, जिसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू एक टीनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से था और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एक मिडिल एज्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से था. तो टीनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ट्रैवलिंग के लिए हमें इंटरनेशनल भी जाना चाहिए, व्हाट्स द हार्म इन दैट. बट द मिडिल एज्ड पर्सन वाज अबाउट कि नहीं, वी शुड मेनली ट्रैवल विद इन आवर ओन कंट्री फर्स्ट एंड देन वी शुड गो अब्रॉड. जो पैसे हमने इंटरनेशनल ट्रैवल पे लगाने हैं वो बेहतर है कि हम किसी और चीज पे लगा दें. सो फर्स्ट पैरा शुड बी इन फेवर. नहीं, I will discuss all these technical details, Abdullah, now at this point because this will confuse you. But जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो. इसके दो से तीन तरीके how we can go about this. Okay? दो तो मेजर हैं. Anyway, so are we good so far, बच्चों? In terms of the development of paragraphs? Okay, मेरा बेटा. All right, let's go on. Then बच्चों ओकेशनल डायरेक्ट एड्रेस डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस क्या है. इसलिए मैं बार आप लोगों को यह बात बता रही हूं कि बच्चों ऑडियंस को समझे बगैर वी कैन नॉट एट ऑल थिंक ऑफ राइटिंग अ गुड पीस ऑफ राइटिंग. ऑडियंस, पर्पस, रजिस्टर, टोन, ये चीजें आपको क्वेश्चन को डिकोड करके समझ जाएंगे तो बेहतर होगा एट द वेरी बिगिनिंग. ऑलराइट बच्चों? ओके. देन मेरा बेटा सब हेडिंग्स हम नहीं बनाते. सब हेडिंग्स का जो पॉइंट है ना, ये जनरली जीसीएससी में आता है, एक्सेल वगैरह में. बट आर्टिकल राइटिंग ओ लेवल्स की जो है उसमें हमने सब हेडिंग्स नहीं बनानी. वी विल ओनली मेक वन हेडलाइन, वन टाइटल. ओके, वन मेन हेडिंग. गुड टू गो बच्चों? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. चलो जी. देन रजिस्टर, lively but controlled, semi formal in most school context. जो मैंने आपको बताया, we generally go from semi formal to formal. all right? या फिर अगर स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, हाँ तब भी, हाँ it could be semi informal to semi formal basically for the school magazine. But overall, अगर if you're writing for a generic adult magazine, let's suppose, or it would be read by people older than you as well, then stick to semi formal to formal. Okay? Are we good to go? Easy peasy lemon squeezy. Okay, चलो let's move on. Effective ending. अच्छा, ये तो I cannot stress on. मैम, what is the difference between GCSEs, IGCSEs and O levels? हसनैन, ये सारे इंटरनेशनल करिकुलर बोर्ड्स हैं बेटा. एक IB भी है, मैंने कहा वो भी बता दूं आपको.
IB stems from Switzerland and the US. इंटरनेशनल बैकलॉरिएट है. इसकी जो पेडागॉगी है ये कंप्लीटली डिफरेंट है. इसमें रिसर्च वर्क है. GCSEs, IGCSEs और O levels दे आर मोर कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड बेस्ड, यूके से एफिलिएटेड है. हम अभी तक बेचारे O levels में इसलिए पढ़े हुए हैं बिकॉज हम साउथ एशियंस हैं. सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ना वो नहीं. GCSE इज डिफरेंट, GCE इज डिफरेंट, या जिसको हम CIE कहते हैं मुकद्दस. ओके, यूके ने O levels रिडंडेंट कर दिया था 1990s में. पूरी दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा कोई और O levels नहीं करवा रहा. इवन लाहौर में भी सो मेनी स्कूल्स हैव नाउ ट्रांजिशनड इनटू IGCSEs. वो इसलिए क्योंकि O levels और A levels के बीच में ना गैप बहुत ज्यादा था. अगर मैं आपको O levels इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूं ना, और बच्चे बेचारे मासूम को ये लगेगा कि A levels की भी इंग्लिश ऐसी होगी, तो ऐसा नहीं है. उसमें ना जमीन आसमान का फर्क है. तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए वी स्टार्टेड विद IGCSEs. ठीक है, तो IGCSE थोड़ा जो ट्रांजिशन है ना वो इजी कर देता है इनटू A levels. नहीं, वैल्यू है, मसला कोई नहीं है, हंसते हैं उससे, मसला कोई नहीं है. जस्ट गिव मी 1 minute गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, होल्ड ऑन. सर मेरी ना बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मैं आपको बस इसके बाद फौरन कॉल करूं. Okay, sorry about that, guys. It was from work actually, so I had to just drop them a voice note. Anyway, no. IGCSE is not more tough. If anything, it's more easy in some aspects in terms of understanding content, but it also makes transition easy for A levels. हाँ, अगर IGCSE first language लोगे, तो then definitely it's more demanding. Whereas IGCSE second language complete हलवा course होता है, but ग्रेट थ्रेशोल्ड जो है ना वो ही दिमाग खराब कर देता है. उसमें A स्टार लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा. नहीं, लाइफ इज नॉट डूम्ड फॉर यू गाइज, यूल बी फाइन बिकॉज कैम्ब्रिज नोज के O levels ही करवाया जा रहा है मेनली पाकिस्तान में. देयर इज वेरी फ्यू स्कूल्स, जैसे लाहौर में इट्स लर्निंग अलायंस, HSN, LGS, JT और एक 2-4 स्कूल्स हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है. मतलब जो बहुत बड़े बड़े 8 ईयर स्कूल्स में मैं पढ़ा रही हूं वहां पे भी O levels है. मैम यूनी क्या प्रेफर करती है? यूनी डजंट रियली केयर बेटा. इक्विवेलेंसी जो आपकी बनती है वो वही बनेगी O की भी जो IGCSE की बनती है. डजंट रियली मैटर. डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि आपकी ट्रांजिशन ईजी हो जाती है थोड़ी इनटू A levels, क्योंकि IGCSE का जो करिकुलम है ना इट्स मोर इजी इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ A levels बेटा. जैसे मैं खुद कहती हूँ कि अगर आप में अंग्रेजी रखनी है ना आगे तो परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा ये क्या आ गया है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है O levels में, वो ऐसी खतरनाक है. सो अनलेस यू रियली आर इनटू इंग्लिश, डू नॉट ऑप्ट फॉर A levels इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आपको लिखने का शौक नहीं है, आपको थिंकिंग का शौक नहीं है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करने का शौक नहीं है चीजों को, डोंट गो फॉर A levels इंग्लिश. मैम अच्छा मिस, व्हाट अबाउट PSN? PSN इज डूइंग बेटर नाउ जूना. हल्के हल्के PSN और AQA पाकिस्तान में आ रहा है, और जो कैम्ब्रिज के हालात चल रहे हैं आजकल उनको देखते हुए स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर PSN. बट ऑब्वियसली मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास ट्रेन्ड टीचर्स नहीं है. पढ़ाएगा कौन आपको? अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो मैंने PSN और AQA ऑनलाइन पढ़ाया है, एंड आई बीन टीचिंग इट फॉर द लास्ट 8 years. मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ईदर फ्रॉम द मिडल ईस्ट और फ्रॉम द UK. बट मुझे उसके लिए सर्टिफिकेशंस करनी पड़ी हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज है ही नहीं. तो फिर आप पढ़ाओगे कैसे? हाउ डू यू नो अबाउट दीज कोर्सेज ना? तो हर अगला टीचर आपको बैठ के बोल देगा कि मैं पढ़ा देता हूं, बट दे वुड नॉट नो द ABCs ऑफ दीज कोर्सेज. अभी इसको टाइम लगेगा पाकिस्तानी सोसाइटी में इंटीग्रेट होते. सो व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू व्हिच इज बेटर? ऑनेस्टली O levels and IGCSE are fine, but जो O levels के हालात चल रहे हैं in terms of the leakages and everything, then you could go for Edexcel. That's okay as well. But overall, O levels IGCSE is fine as well if we can actually what do you call it, overcome these problems, the leak वाला problem. Ma'am, is Oxford AQA better than Cambridge? To an extent हम ना. अब देखो इसमें सब में ना पूरा एक pros and cons है ना सारी चीजों की. Because Oxford AQA is mainly taught in the UK. इस वक्त तो बच्चे IB भी कर रहे हैं. But IGCSE still remains the most acclaimed international curricula.
तो ये डिपेंड करता है कि आपने किधर जाना है, आपने क्या करना है आगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आपने अमेरिका जाना है या स्विट्जरलैंड जाना है मोर और लेस, या आपने कोई रिसर्च बेस्ड लर्निंग कर लिया, तो बेशक IB कर लो फिर. इस बार कैम्ब्रिज हैज रूइंड, यस दे हैव, एब्सोल्युटली. तो बेटा ये है कि इसमें डिपेंड करता है वेयर एग्जैक्टली और व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग. सो वी शुड डू IGCSE. दैट्स द मोर रिकमेंडेड ऑप्शन. यस डेफिनेटली दैट्स द मोर रिकमेंडेड वन. बट आप लोग अब कर चुके हो तो इसलिए इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि बेटा इसमें ये भी डिपेंड करता है ना हसन, IGCSE का भी ज्यादा अच्छा टीचर नहीं है, क्या करोगे फिर. और जो टीचर्स मिलेंगे आपको, दे विल बी एक्सपेंसिव वंस. सो अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, इफ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, हाउ डू आई टीच ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मैंने ये ना सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया है, आई हैव टॉट IGCSE प्रोफेशनली इन स्कूल्स एज वेल, because I work as a visiting teacher. So some schools that I teach at, they are offering IGCSE, and some schools that I teach at, they are offering O levels. That is why I'm most into it. Number one. Number two, क्योंकि मैंने खुद O levels किया था, तो my research has taken me far in this case. My cousin is हाँ. So आयशा, इसमें बेटा factors आ जाते हैं क्योंकि O levels redundant हो चुका है to quite an extent now. पाकिस्तान में in the coming years खत्म हो जाएगा बिल्कुल ये भी. So should we go back, बच्चों? It's okay, don't worry about it, guys. Don't think about these things at this point. ठीक है, you should be informed about these things, but you're fine. You'll be fine, इंशाल्लाह. परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह. हाँ, नहीं, वैल्यू तो रहेगी. जैसे देखो, मैंने O levels किया हुआ है हसन. अब बच्चे IGCSE भी कर रहे हैं, बच्चे IB भी कर रहे हैं, तो क्या मेरे O levels की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है. It still remains a Cambridge, claim degree. तो वैल्यू रहेगी, बिल्कुल रहेगी. इसकी वैल्यू नहीं खत्म होगी बेटा. वैल्यू तो जो मैट्रिक के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर्स बहुत अच्छे अच्छे पास किए, नंबर्स लिए, उनकी भी है. ओके, सो नहीं, वैल्यू डिक्रीज अभी नहीं होती बेटा. अगले 50-100 साल तक तो नहीं होती. ये बड़ा मजे का आपका सवाल है, बिकॉज दिस इज क्वाइट रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश एज वेल एज अ लैंग्वेज, and Cambridge being an awarding body for this. तो ये एवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं आएगा, और ये जनरली मैं चीज़ें अपने लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि दे स्टडी अबाउट लैंग्वेज चेंज. उस पर बहुत और चीज़ें आ जाती हैं. अभी मैंने अगर आप लोगों को बताया तो आप लोग तो शदीद कंफ्यूज हो जाओगे. सो इसलिए आई विल नॉट डिस्कस एनी ऑफ दीज थिंग्स विथ यू. एनीवे, डू वी फॉलो सो फार? यहां तक हैव वी अंडरस्टूड कि हमने जो आर्टिकल के बारे में सारा कुछ समझा है? डिड वी अंडरस्टैंड इट ऑल? इजी पीजी. चलें फिर, लेट्स जॉग योर मेमोरी अ बिट. वी विल स्टॉप विद दिस, एंड आई एम गोइंग टू पुट ऑन वन ऑफ माय फेमस फ्लैश कार्ड्स. लेट्स सी हाउ मच यू guys remember about question 3, paper 1. Can you guys see the screen? All of you need to have your fingers on the keyboards, okay? Because I want rapid answers from all of you. Let's see how much you remember for question number 3, paper 1, summary writing and short response. ठीक है? Let's go. How many total marks is question 3, बच्चों? Quickly, come on, all of you. I need answers from each and every one. Wake up, all of you. 25, well done. Wake up, please, all of you. So your 25 marks है, okay? Let's move on. What are the 2 specific tasks included in question number 3? Quickly, I need answers from each and every one. Summary and short response. Well done. Interview nahi. Summary and short response. That's right. A part is summary writing. B part is what we call short response. Good job, bachcho. How about the 20 marks for question number 3, part A divided? Part A is summary writing. कैसे divide करते हैं हम marks को? How do we divide the 20 marks? Okay, 10 and 10. Well done. Content and language. Good job. Reading and writing. Excellent. Well done. Very good job. Okay. What is the maximum word limit for summary writing? Come on quickly, bachcho. What's the maximum word count? 150. Yes, 150 words. Confused नहीं होना. IGCSE हसनैन 450. मेरा बेटा क्या लिखोगे 450 में? It's 150 words. 450 is बेटा narrative writing and descriptive writing. Okay? 350 to 450. ये मैं इसीलिए करती हूँ ताकि ये आप लोगों की जरा मेमोरी जॉग हो जाए. अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि हमारा वर्ड काउंट 150 है, IGCSE का 120 है.
अगेन अल्लाह के वास्ते उनके पास पेपर्स मत देखना। अगर ये लगता है ना कि पास पेपर्स कम है, मुझे बताओ, मैं आपको इतने प्रैक्टिस पेपर्स बना के दूंगी कि आप लोग थक जाओगे करते करते। ओके, वो पास पेपर्स नहीं देखने। तो 150 वर्ड्स, ओके मेरा बेटा, ऑल राइट। क्वेश्चन 3A, रीडिंग मार्क्स रिवॉर्ड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड व्हाट एल्स? रीडिंग तो हो गया ना, कंटेंट हो गया। No, writing. You see, select the correct information for the exact task. So retrieve will be, and then obviously writing it in your own words, right? I am reminding you guys again कि जो आपका summary का task है उसमें mainly you are tested on the use of your own words. Okay? Are we good to go बच्चों? चलो, let's move on. ठीक है. Question 3A, writing marks rewards the ability to organize points and use. कुछ भी सोच लो, what comes to mind when you read this question? What is it rewarding you on? So your own words and the structure of writing. Structure means you will be using linking words. We remember linking words? Yes, synonyms, very good. Own words. Linking words क्या होते हैं बच्चों? Give me examples quickly. Come on. Give me a few examples in the chat box. Yes, very good. Moreover, however, but नहीं, but is a conjunction, वो हम वैसे भी यूज कर सकते हैं. Yes, furthermore, in addition, although भी नहीं, although is a subordinating conjunction. Remember? देखो, linking words या transition words वो होते हैं जो आपके argument को smoothly लेके चलते हैं. Even though, well done. नहीं, even though भी नहीं, even though भी subordinating है. Moreover, however, in contrast, in addition, firstly, secondly, lastly, in conclusion, ये सारे mainly आपके transition words होते हैं. हाँ, finally, well done, finally is it. Good job. Okie dokie. Let's move on. How many marks is the question 3 part B short response words? Come on बच्चों, quickly. 5. Well done. Bingo. Good job. चलो जी, let's move on. Which specific assessment skill is tested? ये मुझे कौन बताएगा? किस स्किल के ऊपर हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट में? कौन सा वो एक वर्ड है जो मैंने आपको बताया था? नहीं, नॉट पैराफ्रेजिंग आयशा। इस वर्ड को तो मैंने, मुझे लगता है इतनी बार मैंने बताया आपको, नहीं पर्सनल ओपिनियन भी नहीं, रिफ्रेजिंग भी नहीं। इसको हमने क्वेश्चन 1 और 2 में भी डिस्कस किया था। इसका ऑपोजिट इसका ऑपोजिट क्या होता है मेरा बेटा? इम्प्लिसिट। वेल डन, गुड जॉब, वेल डन, बिंगो। इम्प्लिसिट, ये देख लो। R2 which is assessment objective 2 reading 2 understanding implicit meaning। आपको पूरे क्वेश्चन में मार्क्स आपकी अंडरस्टैंडिंग पे मिलते हैं, एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग। राइटर कहना क्या चाह रहा है, मैं कैसे अपना ओपिनियन दे सकता हूं इन दिस रोल प्लेइंग क्वेश्चन। पूरे के पूरे नंबर 5 out of 5 आर इम्प्लिसिट, मतलब आपके लैंग्वेज के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। यू विल लूज नो मार्क्स फॉर स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन और ग्रामर। स्पैग, रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट स्पैग यस्टरडे, SPAG, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। तो यू डू नॉट लूज मार्क्स फॉर दोस। चलो जी, ये क्या हुआ है? हाँ, फॉर हुज पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट यू राइट द आंसर फॉर क्वेश्चन 3 पार्ट बी? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आंसर लिखते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट बी का? व्हाट डू यू मीन बोथ? द गिवन पर्सन, आयशा इज राइट, द गिवन पर्सन, जिसको आप बताए, जैसे वो याद है वही वाला रीटा नी वाला जो क्वेश्चन था, मुकद्दस ने मुझे याद करवाया था। रीटा नी, द एनवायरमेंटलिस्ट, द कंजर्वेशनिस्ट। तो यू आर नो लॉन्गर हमना, मुकद्दस, अब्दुल्ला, आयशा, हसनैन, यू आर रीटा नी। रीटा नी के दिमाग से लिखना। सो दे विल आस्क यू टू रोल प्ले अ पर्सन और आपने उसके हिसाब से आंसर लिखना है। डू वी अंडरस्टैंड बच्चों? एम आई एबल टू जॉग योर मेमोरी? इजी पीजी सो फार। चलो जी, लेट्स मूव ऑन। टर्म एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन बच्चों? कम ऑन, दिस शुड बी इजी पीजी। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी एबल टू टेल मी दिस। जो दिमाग में आता है बताओ, कौन सा ये कोई टेस्ट है? सिंपल मीनिंग, स्टेटेड इन द पैसेज, ओके। Come on guys. The thing that's clear, very good. Okay, move on.
Come on, we're doing good. Directly stated. Very good. I don't know. It's okay. It's okay, Abdullah. Good to go. Explicit मेरा बेटा वो चीज होती है जो डायरेक्टली स्टेटेड होती है. मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, यू टेल मी माय नेम इज अब्दुल्ला. तो ऐसे आंसर्स जब आपको पैसेज में से डायरेक्टली मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन 1 में भी आते हैं इस तरह के सवाल, और जो समरी राइटिंग क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लिसिट होता है, क्योंकि उसमें आपने अपना कोई ओपिनियन नहीं देना होता, आपने सिर्फ समरी के ही पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में लिखना होता है, उनका मीनिंग नहीं चेंज करना. राइट? So that is what we call explicit in nature. Content stated openly in the text that you can point to directly. Good to go बच्चों? Easy peasy lemon squeezy? चलो. What do we mean by implicit meaning? Go on guys. किस word से implicit निकला है? मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को. From what word did we get the word implicit? Not directly stated, but you can understand. Okay, implied, imply. Well done, good job all of you. I'm so proud of you. Implied का मतलब सिंपल होता है कहना क्या चाह रहे हो. मैं अगर आपको कहूं अच्छा हंसता है बेटा, बहुत नींद आ रही है, मैं आपको बिस्तर भी ला दूं, स्नैक्स भी ला दूं, तो बेटा क्या मतलब मैं सीरियस हूं? अगर इफ आई टेल दिस टू अ स्टूडेंट इन क्लास कि बेटा आप तो सो रहे हैं, लेट मी गेट यू यू नो अ बिस्तर एज वेल एंड सम स्नैक्स एज वेल, तो क्या मतलब है? एम आई बीइंग सीरियस और एम आई बीइंग सार्कास्टिक? तो मैं कहना क्या चाह रही हूं? आई एम माई इम्प्लिसिट मीनिंग इज कि अल्लाह के वास्ते जाग जाओ, पढ़ लो. राइट? सार्कास्टिक. राइट? गुड टू गो. इजी पीजी. शुड वी मूव ऑन? चलो जी. विच टास्क क्वेश्चन 3A और B इज प्राइमरली बिल्ड फ्रॉम एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट? ये तो बता दो. ऑल ऑफ यू शुड नो दिस नाउ. Summary, A part, well done, excellent, A. सबका मुझे A नजर आना चाहिए. Good job, bingo, well done. A summary is defined as blank prose, not notes or bullet points. ये सवाल तो सबको जवाब आना चाहिए क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत बात की थी. नहीं, पैरा प्रोज नहीं, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है. जो चीज चलती जाए, कोई पॉइंट्स ना हो. Continuous, well done, Abdullah, good job. It is defined as continuous prose. रिमेंबर ये बात मुकद्दस ने की थी कि मिस फिर हम 2 पैराग्राफ्स क्यों बनाते हैं, एक ही बनाना चाहिए. पैराग्राफिंग कंटिन्यूअस ही होती है मेरा बेटा. हमने बस पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने. ठीक है? क्या हम 10 पॉइंट्स में जवाब लिख रहे हैं? ऐसे नहीं करना. पैराग्राफ हम बना सकते हैं. ओके. व्हाई शुड यू अवॉइड रीटेलिंग अ पैसेज इन सीक्वेंस व्हेन समराइजिंग? बताइए इससे क्या प्रॉब्लम होती है? Why should you avoid retelling a passage in sequence when summarizing? Yes, हो सकता है वो relevant points ना हो. So retelling includes everything. मगर हमने तो nitpick करने ना points. Summarizing requires selecting only the points that fit the statement, the question statement. No. Elaborate नहीं करना. हमने explain कुछ नहीं करना अब्दुल्ला. हमने सिर्फ वो points select करके लिखने हैं जो question हमें बता रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है. मैं फिर ये एग्जांपल दे देती हूँ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑल दोस किड्स जिन्होंने मेरी क्लास ये पहले नहीं ली है, कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास पैसेज फ्लावर्स पे दिया गया है और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स की बात हो रही है, सनफ्लावर्स, पेओनीज, क्रिसेंथेमम्स, ब्ला 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 ब्ला, बट पैसेज इज टेलिंग यू टू राइट अबाउट हाउ वी कैन ग्रो रोजेस. तो आपने पैसेज में से रोजेस वाले पॉइंट्स को निकाल के 150 वर्ड्स के पैराग्राफ में लिखना है. If you end up writing on sunflowers या peonies या chrysanthemums या lilies, you will get a 0. Do you understand? Are we good to go? Good to go बच्चों? चलो. Let's move on. How does ornate vocabulary affect the mark in a summary? Ornate vocabulary, fancy vocabulary. कैसे marks affect होते हैं? मतलब कैसे होते हैं? How does it happen? Okay. It does not raise the mark. सबसे पहले आपने ये समझना है कि knowing a fancy word does not mean that you will get marks. You will only get marks if you are actually writing another synonym, appropriate synonym for the keyword given. All right? But अगर आप कोई ऐसा fancy word लिखाते क्योंकि वो आपको आता था, उसके नंबर नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों. Okay? Are we good to go? Easy peasy. So a relevant point in plain words is much more. बेशक वही वर्ड लिख दो मगर गलत वर्ड मत लिखना, 0 मिल जाएगा. चलो. What should be done with examples